Yes. The next topic that I'm going to start by today is ORM. So the full form of ORM is Object Relationship and Mapping. Okay. The full form of ORM is Object Relationship and Mapping. Okay. See, here is one sentence. Salesforce is purely supports ORM functionalities. Salesforce is built upon ORM functionalities. Now let's understand what does this ORM actually means. So this is one of the diagram that we have seen it so many times. For so many different of the concepts, for so many different concepts, we have taken this. I mean, I have taken this diagram in different perspectives. For the first time when I introduced you this diagram was the time when I was telling ki dekhiye Salesforce mein how much is your effort. Whenever we are developing any of the application, then how much is your effort into that? What is your responsibility as a Salesforce developer, as an administrator? What will be your part? So we came to know about that in the Salesforce is a kind of technology where we just deal with developing the front end part, and for the front end, for the kind of front end, for the form, for the object, whatever you create, one database table with the same name of this name of the object inside database.com is automatically created by the Salesforce itself. Moreover, a business logic class is also written, right? So the first time when I introduced you this diagram was the time when I was telling कि देखिए when you are just about to start learning the Salesforce, तो आपकी कितनी responsibility रहने वाली है Salesforce में? What is your whole responsibility? जैसे बाकी टेक्नोलॉजीज में क्या होता है, एक फ्रंट एंड टीम होती है, एक बैक एंड टीम होती है, एक बिजनेस लॉजिक टीम होती है. So during the application development, usually there are three things. Usually there are three different teams. The people from three different teams are actually deployed onto the same module. बट सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं होता है बिकॉज सेल्सफोर्स में आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू डेवलप द फ्रंट एंड पार्ट ओनली. तो ये था फर्स्ट टाइम और ऐसा और ऐसी काफी जगहों पे हमने इस पे डिस्कशन किया था. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मींस बाय ORM. ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप एंड मैपिंग. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी दैट वी आर लर्निंग राइट नाउ. सो जैसे कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा कि सेल्सफोर्स fully support ORM functionality. Salesforce is completely built on the ORM functionality. Now, what does this ORM actually means? ठीक है, तो while we were discussing this diagram, one thing I told you, देखिए, if you created an object called as position, if you create an object called as position, and we have created few different objects, like हमने position भी create कर रखा है. We also have created candidate object and hiring manager also. So these are the custom objects. Now अभी जो मैं ORM आपको बता रहा हूँ, this is not just related to custom. This actually means every object. जैसे कि कुछ objects हैं account, है ना, और objects हैं cases, contact, leads, opportunities. तो these are also some of the objects. पर हाँ, ये था कि ये standard objects थी. These objects were we haven't created that though, but yeah, Salesforce have created those objects, and we have seen this object right from the first day when we log in into this org. We have seen that it have so many different objects. हाँ, we उसके बाद में as per the requirement of the this particular client, as per the requirement of this project, we have learned how to create our own custom objects, how to create our own custom entities. Like तो हमने hiring manager position and the candidates बनाया. ठीक है, तो व्हेन वी वर डीलिंग विद दिस, तो आई टोल्ड यू वन थिंग. देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, ये फ्रंट एंड बनाना. दिस इज व्हाट योर पार्ट. ठीक है, ये फ्रंट एंड डेवलप करना मतलब यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद आप उसके अंदर जो है फील्ड्स वगैरह क्रिएट करते हो ना, ये दिस इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सब हमने किया. ठीक है, और जैसे कि आपने देखा कि जब हम फील्ड्स क्रिएट कर रहे थे, तो वी वेयर विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वी अंडरस्टैंड लाइक what are the different fields that we have created with different data types into different objects, like hiring manager and the candidate and the position. तो this we have done it. Admin में हमने यही तो सीखा है कि without writing code, with the help of some standard navigations, how could we create the objects, how could we create the fields inside the object. कुल मिला के आपने क्या सीखा था, that time you learned how basically to develop the front end part, how to develop the front end part. ठीक है, तो this is what we have learned. Like हमने ऑब्जेक्ट बनाया पोजीशन,
पोजीशन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में वी हैव क्रिएटेड सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स इनसाइड द पोजीशन ऑब्जेक्ट, है ना, दीज आर द नंबर ऑफ द फील्ड्स दैट वी हैव क्रिएटेड। तो हमने ये फ्रंट एंड बनाया था बेसिकली, कि यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म वन कुड स्टोर अ पोजीशन रिकॉर्ड, जैसे ये सारे पोजीशन रिकॉर्ड्स थे। तो ऐसा ही हमने हायरिंग मैनेजर बनाया, फिर हमने ऐसा ही आपका कैंडिडेट बनाया, और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाई थी हम लोगों ने, राइट। तो this is what we have learned that time, we have learned like how to build up the front end part। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। एक चीज तो आपने उस वक्त ये समझी कि इफ यू क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज पोजीशन, अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका नाम है पोजीशन, तो फॉर योर ऑब्जेक्ट वन डेटाबेस टेबल इज आल्सो क्रिएटेड इन द रियल टाइम, इट इज क्रिएटेड इन द रियल टाइम इटसेल्फ, इट इज क्रिएटेड, कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके लिए एक डेटाबेस टेबल भी क्रिएट होता है। अच्छा, फिर वो टेबल का नाम क्या होता है? जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट का नाम है पोजीशन, तो टेबल का नाम भी क्या होगा? पोजीशन ही होगा। डेटाबेस में जो टेबल है उसका नाम पोजीशन ही होता है। अगर ऑब्जेक्ट का नाम है पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, बिकॉज वो कस्टम ऑब्जेक्ट है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, तो डेटाबेस टेबल का नाम क्या होगा? पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। अगर आपके ऑब्जेक्ट का नाम है अकाउंट, जैसे कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में ये सब नहीं होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं होता, वो स्टैंडर्ड होती है इसलिए। अगर आपके ऑब्जेक्ट का नाम है अकाउंट, फ्रंट एंड में जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है अकाउंट, तो उससे रिलेटेड जो डेटाबेस टेबल है मेमोरी में, उसका नाम भी क्या होता है? अकाउंट ही होता है। ठीक है, ये एक चीज बेसिकली हमने देखा। इससे जो चीज समझ में आती है वो ये आता है कि फ्रंट एंड पे जो ऑब्जेक्ट का नाम होता है उसी नाम से डेटाबेस टेबल भी होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का नाम है अकाउंट, तो अकाउंट ही नाम का डेटाबेस टेबल होगा। अगर ऑब्जेक्ट का नाम है कॉन्टैक्ट, तो डेटाबेस टेबल का नाम भी क्या होगा? कॉन्टैक्ट। सेम ऐसे अगर हायरिंग मैनेजर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, पोजीशन अंडरस्कोर सी, बुक अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ऑथर अंडरस्कोर सी, कैंडिडेट अंडरस्कोर सी, तो टेबल का भी नाम यही होगा, कैंडिडेट अंडरस्कोर सी, ऑथर अंडरस्कोर सी, बुक अंडरस्कोर सी। समझ रहे हो आप? जैसा, तो एक तो ये चीज होगी। अब एक चीज जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमको, वो ये पार्ट है। ओआरएम में बेसिकली हम इसके साथ डील करते हैं। ओआरएम में हम बेसिकली इसके साथ डील करते हैं, और ये है आपकी बिजनेस लॉजिक क्लास। बिजनेस लॉजिक क्लास, तो जब ये डायग्राम मैं आप सबको पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने एक चीज बताई कि देखिए, फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ने के लिए, मतलब ये जो आपको फ्रंट एंड पार्ट है, ये जो फॉर्म आपने, जो यूजर इंटरफेस जो आपने क्रिएट किया है, फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर इंटरफेस, एंड दिस डेटाबेस टेबल, if we wanted to establish a channel between these two, so that part is what? Business logic class. What is a business logic class? Business logic class is, by the way, a mediator. It's a bi-directional communication channel. It's a communication channel. It's a bridge between your front end part, between your user interface and the database table. Okay, for example, you enter something over here, something over here, something over here, and you press the save button. So all these entries should be reflected as a row into database column. और यहाँ पर डेटा अगर कुछ स्टोर है तो यहाँ फ्रंट, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो हाउ? तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा जाना, डेटा का यहाँ से यहाँ तक आना, मतलब फ्रंट एंड से टेबल में जाना, टेबल से फ्रंट एंड पे जाना, तो ये सब कौन करके देता है? दिस होल थिंग इज डन विद अ क्लास कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक क्लास। बिजनेस लॉजिक क्लास। अब उस वक्त आपको क्लास नहीं पता थी, बिकॉज आप फ्रंट एंड, आप एडमिन के पार्ट पे थे, लेकिन आज तो एटलीस्ट आपको क्लास पता है। यू नो व्हाट डज इट मीन्स बाय अ क्लास, है ना, आपको पता है। Yesterday also we have learned कि what is class, always a class has a name, a class always has a name, then class always has few of the members. Members are what? Members are the variables inside that particular, variables that are defined inside the scope of class. Every variable that is defined inside the scope of the class, यहाँ से लेके यहाँ तक, these variables are called as members of the classes. How to access the members of the classes? We need to create the object of that class. We need to create the object of that particular class, है ना। तो that is what yesterday's discussion was, this whole thing, कि हमने देखा कि how we could access these members of the classes. First of all, what we require to create the object of the class, and with the object name dot variable name, this is the way to access the class. Even, you could assign the value, you could retrieve the value, but whatever you do with the members of the classes, you require the name of what? The name of object। तो ये हमने कल देखा था। तो बेसिकली अब आपको क्लास का कंसेप्ट समझ में आ चुका है कि व्हाट डज इट मींस बाय अ क्लास। नाउ आई विल, if I'm saying you this, कि देखिए, whenever we built up, whenever we create an object, for example, I create an object named as position, one thing for sure, we are sure
that for this object what we created onto user interface, जो हमने यूजर इंटरफेस पे बनाई है, उसके लिए एक डेटाबेस डॉट कॉम पे एक टेबल भी क्रिएट हो चुका है, रियल टाइम पे ही होता है सब कुछ। आपने जो फील्ड्स बनाई उसके अंदर, ये फील्ड बनाया, ये फील्ड बनाया, उसके लिए डेटाबेस में क्या हो, एक एक कॉलम से ऐड होता चला गया। पोजीशन जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेबल क्रिएट हो गया। पोजीशन में जैसे ही आपने फील्ड्स ऐड करना शुरू किया, फोन फील्ड ऐड किया, बैलेंस फील्ड ऐड किया, तो फोन बैलेंस जो है एक एक कॉलम, और आप बढ़ाते जाओ, यहाँ पे और कॉलम्स ऐड होते चले जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज और हुई है, मतलब एक तरफ फ्रंट एंड क्रिएट हो रहा है, एक तरफ बैक एंड क्रिएट हो रहा है, तो एक तरफ एक बिजनेस लॉजिक क्लास भी लिखी जा रही है, इंटरनली लिखी जा रही है। And this business logic class is a connector. This is actually the way, this is actually the way these two things are interrelated to each other. These two things are interrelated to each other. ठीक है, दिस इज द वे। तो अब ये जो बिजनेस लॉजिक क्लास होती है, इसका नाम क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट का नाम अगर पोजीशन है, डेटाबेस टेबल का नाम अगर पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का नाम अगर अकाउंट है, डेटाबेस टेबल का नाम अगर अकाउंट है, ऑब्जेक्ट का नाम कॉन्टैक्ट है, डेटाबेस टेबल का नाम भी कॉन्टैक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम अगर अपॉर्चुनिटी है, डेटाबेस टेबल का नाम भी अपॉर्चुनिटी है, ऑब्जेक्ट का नाम अगर कैंपेन है, डेटाबेस टेबल का नाम भी कैंपेन है। बिजनेस लॉजिक क्लास का नाम क्या है? बिजनेस लॉजिक क्लास का भी नाम वही होता है जो आपके ऑब्जेक्ट का होता है या डेटाबेस टेबल का होता है। मतलब ये तीन एंटिटी एक ही नाम की रहती है, ये तीनों एंटिटी एक ही नाम की रहती है। ठीक है, तो जहां ये जो वर्ड यूज होता है ना, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप एंड मैपिंग, ठीक है, तो ये अगर मैं ओआरएम की बात करूं तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट और डेटाबेस के साथ इसके रिलेशन को मैप करना। ठीक है, डेटाबेस के साथ इसके रिलेशन को मैप करना, दैट इज फॉर द यूज ऑफ बिजनेस लॉजिक क्लास। तो ओआरएम का मतलब बेसिकली क्या होता है? व्हाट डज इट मींस बाय ओआरएम? ओआरएम का मतलब होता है एक ऐसी क्लास, एक ऐसी बिजनेस लॉजिक क्लास that is going to create a relationship, that is going to map, that is going to create a relationship between front end and the back end. तो ये भी एक डिफॉल्ट फीचर है सेल्सफोर्स का। सेल्सफोर्स आपको सिर्फ फ्रंट एंड नहीं देता, सेल्सफोर्स विद द हेल्प ऑफ database.com आपको बैक एंड भी प्रोवाइड करता है। Even Salesforce also provide you ORM facility. With the help of a business logic class, Salesforce provide you this ORM facility, object relationship and mapping, that your front end object is always related to the back end database table with the help of a business logic class. And this connection, the kind of feature which actually which connect the front end to back end and the back end to front end, this is something called as ORM. ये इसी को बोलते हैं ORM। और ये हमने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ था, बस मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करी थी उस वक्त, क्योंकि वो सही समय नहीं था, आप लोग का नॉलेज उस वक्त उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए मैंने वो टर्म आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया था। बट बेसिकली यही ओआरएम। तो ओआरएम क्या है? ओआरएम एक बिजनेस लॉजिक क्लास है। ओआरएम बेसिकली एक क्लास है। ओआरएम क्या है? ओआरएम एक क्लास है, एक बिजनेस लॉजिक क्लास है, जिसका नाम ऑब्जेक्ट का नाम से सेम होता है। ऑब्जेक्ट नेम बोलो, टेबल नेम बोलो, ये तीनों एंटिटी एक ही नाम की होती है। तो अब एक चीज अगर मैं थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनो इस क्वेश्चन को, और आपको फिर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है, बाय द वे में अगर अकाउंट अकाउंट ऑब्जेक्ट है, मतलब अकाउंट का अपना एक टेबल भी है। अगर मैं अकाउंट में कोई चीज स्टोर करता हूँ या कुछ रिट्रीव करता हूँ, तो वो अकाउंट टेबल से मिलता है मुझको। तो अकाउंट की अपनी क्लास भी होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही एंटिटी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना एक ही एंटिटी हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी तो क्लास भी होगी और उसका टेबल भी होगा। तो अगर अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे ओआरएम अप्लाई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ओआरएम हर जगह है। सेल्सफोर्स इज प्योरली बिल्ट अप ऑन ओआरएम फीचर। सेल्सफोर्स जो है वो पूरी तरह से ओआरएम को फॉलो करता है, फिर चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, फिर चाहे वो कस्टम ऑब्जेक्ट हो, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट हो जो पहले से क्रिएटेड है, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट हो जो आपने क्रिएट किया है। दोनों सूरतों में, दोनों केसेस में ओआरएम को सेल्सफोर्स पूरी तरह से फॉलो करता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट, अब ध्यान से सुनो, हर एक ऑब्जेक्ट मतलब एक क्लास होता है। कल मैंने शायद ये चीज पर डिस्कशन लिया भी था, शायद मैं जब ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा था तब मैंने बोला कि टर्मिनोलॉजीज का फर्क पड़ जाता है। तो आपने अकाउंट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया है, केसेस को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया है, लेकिन कल चल के आपको पता चलेगा कि दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड क्लासेस। एंड वेन एवर यू क्रिएट एनी अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे आपने हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने पोजीशन क्रिएट किया, आपने कैंडिडेट क्रिएट किया, तो जब आपने ये ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया ना, एट दैट मोमेंट सेल्सफोर्स इटसेल्फ हैव क्रिएटेड वन ऑफ द क्लास फॉर इट। तो एक्चुअली यहाँ पे अपन देखें ना, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन जब अपन डेवलपर कंसोल पे जाएंगे और डेवलपमेंट मतलब डेवलपर के एंगल से सोचेंगे ना, तो हमारे लिए सारी क्लासेस हैं, ये सारी हमारे लिए क्लासेस है। अकाउंट एक क्लास है,
केस एक क्लास है, कॉन्टैक्ट एक क्लास है, लीड एक क्लास है, अपॉर्चुनिटी क्लास है, रिपोर्ट, हायरिंग मैनेजर, पोजीशन, कैंडिडेट, ये सारी हमारे लिए क्लासेस हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बनी है, जैसे अकाउंट पहले से बना है, हायरिंग मैनेजर हमने बनाया, तो चाहे हमने बनाया है कि चाहे पहले से बनी हो, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे कस्टम हो, ये चीज तो कंफर्म है, ये चीज तो कंफर्म है कि जब फ्रंट एंड बना होगा तो उसका बैकएंड जरूर होगा। और बैकएंड में दोनों आता है, बैकएंड में दोनों आता है। बैकएंड में आता है आपका डेटाबेस टेबल, बैकएंड में आता है आपका बिजनेस लॉजिक क्लास। तो अगर ऑब्जेक्ट आपको फ्रंट एंड पे दिखाई दे रहा है, अगर आप देख सकते हैं अकाउंट, अगर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट, अगर आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी, हायरिंग मैनेजर, तो आप श्योर रहिए, आप एब्सोल्युटली श्योर रहिए, 100% श्योर रहिए कि इसका बैकएंड अवेलेबल है। भाई तभी तो वो काम कर रहा है, तभी तो वो काम कर रहा है। इसका बैकएंड पे डेटाबेस टेबल अवेलेबल है, इसके लिए एक बिजनेस लॉजिक क्लास पहले से लिखी जा चुकी है। ठीक है, पहले से लिखी जा चुकी है। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ओआरएम। तो ओआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ओआरएम के नजरिए से देखें, ओआरएम के नजरिए से अगर हम देखें ना, तो सारे ऑब्जेक्ट्स क्लास है। अकाउंट, अकाउंट एक क्लास है, केस एक क्लास है, कॉन्टैक्ट ये क्लास है, लीड ये क्लास है, अपॉर्चुनिटी ये भी एक क्लास है, अब रिपोर्ट नाम की एक क्लास है, हायरिंग मैनेजर नाम की एक क्लास है, पोजीशन नाम की एक क्लास है, कैंडिडेट नाम की एक क्लास है। हर एक ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया या सेल्सफोर्स ने हमको दिया, वो सारी क्लासेस हैं। अब ठीक है, अगर यहां तक आपको क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे ये समझाता हूँ। अगर क्लास है तो मेंबर भी होंगे, भाई क्लास होती है तो उसके अंदर मेंबर्स भी तो होते हैं। अब ये तो हमने क्लास बनाई कंप्लेन नाम की क्लास, तो इसके अंदर के मेंबर्स भी हमने ही क्रिएट करे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि एवरी ऑब्जेक्ट इज अ क्लास, व्हाट कुड बी द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, तो इसके मेंबर्स क्या है वो भी देखो। इस क्लास के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, इस क्लास के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, वो सारे इसके मेंबर्स हैं। जैसे कि आपने जब क्लास क्रिएट किया हायरिंग मैनेजर, मतलब ऑब्जेक्ट जब आपने क्रिएट किया हायरिंग मैनेजर, तो एक क्लास क्रिएट हो गई, एक डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया। फिर हायरिंग मैनेजर क्रिएट करने के कुछ दिन बाद जैसे आपको पता चला, एक चीज बताओ मुझे कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कौन कौन सी डिफॉल्ट फील्ड है जो अपने आप क्रिएट हो जाती है उसमें? बताइए। जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो 5 स्टैंडर्ड फील्ड जो है वो अपने आप क्रिएट हो जाती है। कौन कौन सी, बाय द वे? अनम्यूट तो, अच्छा अनम्यूट कर सकते हो, एक मिनट रुको। हाँ चलो अनम्यूट कर सकते हो अभी आप लोग। बताइए मुझे कि व्हेनेवर वी क्रिएट एन ID ऑब्जेक्ट। name, name ID and name owner created by last modified by. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देयर आर 5 फील्ड्स है ना, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे हायरिंग मैनेजर, जैसे कैंडिडेट, तो जब भी आप ये क्रिएट करते हो तो 5 फील्ड्स अपने आप क्रिएट होती है। आईडी, नेम, ओनर, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, राइट? तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो साथ ही साथ एक डेटाबेस टेबल क्रिएट होता है, साथ ही साथ एक बिजनेस लॉजिक क्लास भी क्रिएट होती है। तो अगर एक क्लास क्रिएट होती है, तो जैसा मैंने कहा कि मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, तो मेंबर्स उस क्लास के होते हैं कि जो फील्ड्स है उसके अंदर की। तो जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो उसकी क्लास जब क्रिएट होती है, वो 5 फील्ड्स के साथ, 5 मेंबर्स के साथ क्रिएट होती है। और वो मेंबर्स होते हैं आईडी, नेम, ठीक है। ये मेंबर्स कौन कौन से होते हैं बाय द वे? ये मेंबर्स होते हैं आपके, पहला मेंबर होता है आईडी, पहला होता है आईडी, दूसरा होता है नेम, ठीक है, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, एंड ओनर, ठीक है। आईडी, नेम, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर। तो ये होते हैं उसके मेंबर्स। अब देखो, मेंबर्स आर आल्सो वेरिएबल्स ना, मेंबर्स आर आल्सो वेरिएबल्स। यहां से कट कर लेता हूं इसको। मेंबर्स आर आल्सो वेरिएबल्स, राइट? मेंबर्स है वो भी सारे वेरिएबल्स ही हैं। जैसे यहाँ कहीं पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ कहीं पर ये है वो सारे मेंबर्स जो क्रिएट होते हैं। अब आईडी का डेटा टाइप क्या होता होगा बाय द वे? आईडी का डेटा टाइप खुद आईडी ही होता है, ठीक है। नेम का डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, दीज आर रेफरेंस फील्ड। ओनर, दिस इज ऑल्सो रेफरेंस फील्ड, लुकअप रिलेशनशिप होती है ये, तो ये रेफरेंस फील्ड है, दीज आर रेफरेंस फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली कैसा है कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, वैसे ही एक क्लास क्रिएट होती है, और क्लास इज ऑलवेज क्रिएटेड विद दीज 5 मेंबर्स। उसके बाद में फिर आपने जितने ऐड किया, जैसे आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया, तो उसका डेटा टाइप क्या है? फोन। एचआर ईमेल आईडी नाम की फील्ड आपने क्रिएट करी, तो एक और नया मेंबर ऐड हो गया, उसका डेटा टाइप क्या है? ईमेल, ठीक है। फोन, ईमेल, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रिंग होता है डेटा टाइप। ऑटो नंबर, ये क्या होता है? स्ट्रिंग। क्विक लिस्ट क्या होता है? स्ट्रिंग। बेसिकली ये वहां पे दिखते हैं, लेकिन हमने देखा प्रोग्रामिंग में 2 ही डेटा टाइप चलते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है एस ऑब्जेक्ट। तो प्रिमिटिव के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, आईडी, इंटीजर, स्ट्रिंग, लॉन्ग, डबल,
है ना। तो फोन, ईमेल, ऑटो नंबर, पिक लिस्ट, ये सब स्ट्रिंग में आता है बेसिकली। तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसका भी स्ट्रिंग, इस तरह से बेसिकली। तो ये ऐसा काम करता है। तो कुल मिला के बात क्या बनती है कि ओआरएम का मतलब क्या होता है, ओआरएम यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप एंड मैपिंग। और ये कंसेप्ट यही कहता है आपसे कि वेन एवर यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट एंड, दो चीजें होती है। पहला उसका डेटाबेस टेबल बनता है, और दूसरा डेटाबेस टेबल को फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड को डेटाबेस टेबल क्रिएट कर कनेक्ट करने के लिए एक बिजनेस लॉजिक क्लास क्रिएट की जाती है ऑटोमेटिकली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर पोजीशन एक ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन डेफिनेटली क्लास भी है। अगर हायरिंग मैनेजर एक ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली देर इज अ क्लास कॉल्ड एज हायरिंग मैनेजर। अब वो हिडन क्यों है, हमको वो दिखती क्यों नहीं है, मतलब अगर आप इस क्लास को यहाँ देखने जाओगे, इफ यू ट्राई टू सर्च इट ओवर हियर, मतलब माय डेवलपर कंसोल में जाते हो, और अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे ना, फॉर एग्जांपल न्यू एंड ओपन, क्या ओपन करना, क्लास। यहाँ पर अगर आप चाहो पोजीशन देखना, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कैंडिडेट देखना, नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज दे आर हिडन। वाई? बिकॉज दिस इज, मैंने कहा ना, एक कोडिंग के पीछे कोडिंग चलती जो मेटा डेटा कहलाती है। तो ये सारी चीजें जो क्रिएट हो रही है ना, ये मेटा डेटा पे क्रिएट होती है। ये सब चीजें जो क्रिएट हो रही है ना, ये सारा मेटा डेटा पे क्रिएट होता है, इसलिए आपसे हिडन होता है। लेकिन आपको, अगर आप ओआरएम समझ रहे हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एवरी ऑब्जेक्ट इज अ क्लास। अगर ऑब्जेक्ट है तो देयर एग्जिस्ट अ क्लास, नेम क्या है, सेम। कॉन्टेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो कॉन्टेक्ट नाम की क्लास भी होती है। उसके मेंबर्स क्या होते हैं, उस ऑब्जेक्ट में जाके जितनी भी फील्ड्स दिख रही है तुमको, वो सारी फील्ड्स, एवरी फील्ड, एवरी फील्ड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली द मेंबर ऑफ दैट क्लास। ये होता है बेसिकली ओआरएम। ठीक है, ये होता है ओआरएम। तो आज के बाद हम सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी हमको दिखे हैं आज तक, उन सबको हम क्लासेस कंसिडर करेंगे। और ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी फील्ड्स नजर आएंगी हमको, जितनी भी फील्ड्स, जैसे नेम, अकाउंट, जो भी है, दे आर द मेंबर्स ऑफ द क्लासेस। ये सारे उसके वेरिएबल्स हैं, ये सारे उसके मेंबर्स हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं देखना है कि मुझे कितने कितनी कितनी फील्ड्स हैं, तो अकाउंट पे जाता हूँ मैं, सारी फील्ड्स नजर आ रही है ये वाली। ये जितनी भी फील्ड्स नजर आ रही है, दीज आर व्हाट, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द क्लासेस। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे मेंबर्स हैं, हर हर एक ऑब्जेक्ट अपने लिए क्लास है। इसके बाद यहां से लेके आखिरी तक, डेवलपमेंट तक, सारी ऑब्जेक्ट इसके बाद हमारे लिए क्लास है। तो अब अगर मैं अकाउंट को एक क्लास, केस को एक क्लास, हायरिंग मैनेजर को क्लास बोलूं, पोजीशन को क्लास बोलूं, कैंडिडेट को क्लास बोलूं, अपॉर्चुनिटी को एक क्लास बोलूं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ओआरएम यही तो समझा रहा है आपको। ओआरएम आपको क्या समझा रहा है? ओआरएम बेसिकली आपको यही तो समझा रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक क्लास भी होता है। जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसी नाम से एक क्लास भी क्रिएट होती है। ठीक है। और उसी नाम से एक डेटाबेस टेबल भी क्रिएट होता है। तो ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर पोजीशन एक ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली पोजीशन एक क्लास भी है। तो अभी कैसे ना, ये पार्ट अपना खत्म हो चुका है यार, है ना। हम प्रोग्रामिंग में आ चुके हैं। प्रोग्रामिंग में मतलब अपने को यहाँ से आगे की बात करनी है। तो अब अगर मैं पोजीशन बोल रहा हूँ आपसे, तो मैं ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन क्लास की। अगर मैं अकाउंट बोल रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट क्लास की, क्योंकि इसके बाद अब सारा कुछ यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं लोग। राइट। तो ये एंड अभी अपने को देखना नहीं है फिलहाल, यहाँ तक ये हो गया, हमारा खत्म हो गया एडमिन। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इसके बाद अब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एज अ क्लास रेफर करूंगा। ठीक है। चलिए, तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ओआरएम एक्चुअली टेल्स यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज है, देखो, जैसे अगर अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी अपनी बिजनेस लॉजिक क्लास है, उसका नाम भी अकाउंट ही है। कॉन्टैक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट नाम कॉन्टैक्ट है, क्लास का नाम भी कॉन्टैक्ट है। अपॉर्चुनिटी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक अपनी क्लास है। आपने क्रिएट किया हायरिंग मैनेजर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, कस्टमर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, उसका भी क्लास का नाम यही है, कस्टमर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, है ना। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ओआरएम एक्चुअली। चलो, इस मुताबिक थोड़ा सा थ्योरी मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल्स पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप पढ़ना है। ये सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपको पढ़ने हैं। हाँ, देर आर फ्यू सेट ऑफ द रेडीमेड फंक्शंस, वो समझ जाएगा, डोंट वरी, ये सब रेडीमेड फंक्शंस हैं। मतलब हर एक क्लास पे, मतलब जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे आप जाते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू क्लिक दिस न्यू बटन, तो छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जैसे आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, सेव, सेव न्यू, कैंसिल। और ये तो हो गया एडिट लेआउट पे। अगर आप डिटेल लेआउट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल डिटेल लेआउट पे जाते हैं, इफ आई ओपन दिस रिकॉर्ड, तो यहाँ पर कुछ एडिट, डिलीट, है ना, ये सब जो बटन्स आते हैं। तो इस कैसे इसकी फंक्शनैलिटी बैकएंड पे काम करती है। तो अगर जैसे ये क्लास है एडिट, तो एडिट एक बटन है, तो ये सब क्या है, फंक्शनैलिटीज हैं। फंक्शनैलिटीज मतलब मेथड्स होता है बेसिकली।
तो हर क्लास को कुछ रेडीमेड सेट ऑफ मेथड मिलता है। जैसे सेव एक मेथड है। सेव क्या करता है? सेव जो बटन आप प्रेस करते हो, तो जब आप बटन प्रेस करते हो तो उसके बैकएंड में कोडिंग चलती है, और वो जो फॉर्म में जो डेटा उसको सेव करता है डेटाबेस पे, तो वो सेव फंक्शन करता है। कैंसिल, क्विक सेव, डिलीट। उसके बाद में कुछ पेजिनेशन की भी मेथड्स है, जैसे कि आप देखो, इफ आई गो टू द डिटेल लेआउट पे जाता हूँ, तो जैसे यहाँ पे शो 25 आइटम्स, तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। वन सेकेंड, लेट मी गो विद दिस। ऑल अकाउंट्स क्लिक करता हूँ, तो यहाँ ये जो नीचे में दिख रहा है आपको ना, यू सी 1/30, 1/10, अगर मैं इसको 10 कर दूँ, तो 1/10। अब यहाँ दिख रहा है कि ऑफ 31, फिर अभी पेज नंबर 1 और 4। फिर यहाँ पे कुछ आपको ये कंट्रोल बटन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस, नेक्स्ट वगैरह। दीज आर समथिंग कॉल्ड एज पेजिनेशंस। तो ये भी कंट्रोल हर जगह अवेलेबल है। तो इसके भी बैकएंड पे कोडिंग चलती है, जिसको मेथड्स है ये सब, और कुछ नहीं। फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, हैज नेक्स्ट वगैरह वगैरह। तो ये थ्योरी है और कुछ नहीं है। और ये बेसिकली अपन विजुअल फोर्स पेज पे कवर करने वाले हैं, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। अभी पढ़ लिया, समझ गया तो अच्छी बात है। अभी नहीं भी समझा तो विजुअल फोर्स पेज पे वैसे भी कवर होना ही है, बिकॉज ये मेथड तो वहाँ पे यूज करना ही है हमको, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें हो जाती है। वैसे ये कोई बहुत बड़ी भी चीज नहीं है। ये बस ये बताना चाहते हैं कि हर पेज पे कुछ रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल हैं, जो बटन और लिंक्स के फॉर्म पे है। बटन जैसे कि सेव, बटन जैसे कि कैंसिल, बटन जैसे कि क्विक सेव और डिलीट, एडिट। आप ये बटन को प्रेस कर, तो उसके पीछे में जो कोड चलता है वो इन मेथड्स में अवेलेबल है। और लिंक्स जैसे कि फर्स्ट, नेक्स्ट, ये सब पेजिनेशन की लिंक्स है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ यहाँ से। उसके पहले का थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक बार पढ़ लेना, मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। राइट एन अपेक्स प्रोग्राम टू इंसर्ट द हायरिंग मैनेजर, या फिर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ में। हायरिंग मैनेजर यहाँ पर है, तो फिर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं लीड लेता हूँ या अकाउंट ले लेता हूँ, ताकि वो एक नया एग्जाम्पल वो क्रिएट हो जाए आपके लिए, दूसरा एग्जाम्पल ये क्रिएट हो जाए आपके लिए। चलिए, सो ओके, लेट मी टेक यू टू दिस। डेवलपर कंसोल पे लेके चलता हूँ। अभी देखो, एक चीज आप समझो, मैंने एक क्लास बनाई कस्टमर इन्फो के नाम से। दिस इज अ क्लास व्हाट आई क्रिएटेड। तो उसके अंदर फिर मैंने वेरिएबल्स बनाए, यानी उसके मेंबर्स क्रिएट करे, और फिर इनको एक्सेस करने के लिए फिर हमने कोड लिखा था उस दिन। ठीक है, तुमको याद होगा, सबसे पहले मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सबसे एज एन स्टेप नंबर 1 मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सबसे पहले क्लास क्रिएट किया। स्टेप नंबर 1 मैंने क्लास क्रिएट किया। स्टेप नंबर 1 क्लास क्रिएट किया। स्टेप नंबर 2 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया? ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास नेम, ये मैंने क्लास नेम डाला। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, जैसे सी इन्फो इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड, फिर से क्लास नेम, बट इन द फॉर्म ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इन द फॉर्म ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या क्रिएट किया आपने? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप कैसे ना, एज स्टेप नंबर 1 आप ये बोल सकते हो कि स्टेप नंबर 1 आप क्लास क्रिएट करिए। स्टेप नंबर 2 आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, और फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से जो है, तो फिर आप आगे की कोडिंग करो उस ऑब्जेक्ट की मदद से। जैसे अब मैं लिखूंगा कि सी इन्फो डॉट, पहला वेरिएबल जैसे कस्टमर कोड, सी इन्फो डॉट कस्टमर कोड इक्वल्स टू 1 2 3 4, समथिंग लाइक दिस। तो ये था मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 वाज लाइक टू क्रिएट अ क्लास। स्टेप नंबर 2 क्रिएट द ऑब्जेक्ट, एंड देन स्टेप नंबर 3 उसको एक्सेस करो। अब जो है, आप मेंबर को एक्सेस करो, ये क्लासेस के मेंबर है उनको एक्सेस करो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम देखा, ये हमने कल देखा कि आपने क्लासेस बनाई, क्लासेस के मेंबर्स बनाए, और उन मेंबर्स को एक्सेस करना था, तो पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की मदद से फिर आपने सारे मेंबर्स को एक्सेस किया वन बाय वन। पहले आपने वैल्यूज ट्रांसफर करी, और बाद में आपने वैल्यूज को प्रिंट किया। ये हमने लास्ट टाइम किया, इसलिए मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब ये एक्सपेक्टेड नहीं, अब ये एक्सपेक्टेड है मेरे को कि आप ये चीज जो है भली भांति जानते हो, क्योंकि कल आपने बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे रखे थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपने वाकई में प्रैक्टिस कर रखी तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिवीजन हमेशा लेता हूँ। अब ये था स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप नंबर 2। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 एक्सेस करना। स्टेप नंबर 1 क्लास क्रिएट करो, स्टेप नंबर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्टेप नंबर 3 ऑब्जेक्ट के जरिए, है ना, विद द मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेस द मेंबर्स, मेंबर को एक्सेस करिए। तो ये था आपकी क्लास जो आपने बनाई थी। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ध्यान से सुनो, और फिर आप मुझे चैट पे आंसर दो। ये तो वो क्लास है, इट्स अ कस्टम क्लास जो मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, अब मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अकाउंट क्लास को, अपॉर्चुनिटी क्लास को, हायरिंग मैनेजर क्लास को, लीड क्लास को। आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस। तो आप मुझे ये बताओ, क्या मुझे क्लास क्रिएट करने की जरूरत है? अगर मैं
अकाउंट नाम की क्लास है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे क्लास क्रिएट करने की जरूरत है, और रादर मुझे ये कंसिडर कर लेना चाहिए कि अकाउंट ऑलरेडी एक क्लास है जो पहले से बनी हुई है और जिसके मेंबर्स पहले से बने हुए। मुझे स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और स्टार्ट करो। क्या लगता है आपको कि क्लास बनानी चाहिए कि क्लास बनी हुई है? क्या लगता है? अगर मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कस्टमर इन्फो नहीं, अकाउंट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही अक्षर है ना। नो वी डोंट नीड टू क्रिएट द क्लास। क्यों भाई? क्योंकि क्लास तो पहले से बनी हुई है। क्लास तो पहले से बनी हुई है। जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बन गई। जब ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स बनाया मेंबर्स भी क्रिएट हो गए। तो अब आपको एक्चुअली कहां से स्टार्ट करना है? स्टेप नंबर 2 से, यहां से। ठीक है। तो अब वही एग्जांपल मैं बेसिकली आपको दिखाने वाला हूं आप सभी को। ठीक है। तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लेके चलता हूं आपको एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो पे, एक्सपैंड करता हूं इसको, और जैसे अकाउंट पे ले लेते हैं। चलो, तो मैं अपनी तरफ से एक यूज केस दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक दो यूज केस वहां पर ऑलरेडी है, वो भी सॉल्व करना है, और ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। जैसे राइट एन अपेक्स कोड टू insert a record in an account, insert an account record, insert a record in account, या फिर insert an account record, insert an account record। एक अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, लेकिन यहां से नहीं करेंगे हम। यहां से नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाओ न्यू अकाउंट करो, यहां से नहीं बोल रहा हूं मैं। यूजर इंटरफेस यूज करके नहीं, डेवलपर कंसोल यूज करके अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ठीक है। चलो, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। वैसे तो अकाउंट एक क्लास है, तो अगर कोई भी क्लास हमें एक्सेस करना होता है, कोई भी क्लास हमें एक्सेस करना होता है, कोई भी क्लास अगर हमें एक्सेस करना पड़ता है, व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज टू स्टेप नंबर 1 क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो अगर मुझे अकाउंट क्लास को एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूंगा? अकाउंट, सबसे पहले क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम एसीसी, कुछ भी दे सकता हूं, इक्वल्स टू न्यू, फिर क्या? अकाउंट, अकाउंट, मेक इट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखो, हमने क्लास नहीं क्रिएट करी क्योंकि वो पहले से क्रिएटेड है। हमने क्या क्रिएट किया? ऑब्जेक्ट। हमने क्या क्रिएट किया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से वैल्यू असाइन करो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, assign the values to the members of the class with the help of object, with the help of ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसकी मदद से, उसकी मदद से वैल्यूज असाइन करो। तो जैसे एसीसी, ठीक है, एसीसी डॉट। अब अकाउंट ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं आप देखो यहाँ पे। वैसे यहाँ पे नेम फील्ड ही इकलौती है जो मैंडेटरी है, ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो ना, व्यू फील्ड से भी देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो सारी फील्ड्स आ रही है, नेम, अकाउंट नंबर, ओनर। ठीक है। तो जितनी देनी उतनी दो, जो मैंडेटरी है वो तो देना ही है। अगर पूरे अकाउंट की मैं सारी फील्ड्स को कंपेयर करता हूँ, तो मुझे नजर आता है कि सिर्फ एक ही फील्ड है वो मैंडेटरी है, नेम। बाकी सब ऑप्शनल है। अगर मैं अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो बिना नेम दिए हुए मैं क्रिएट नहीं कर सकता, यू मस्ट एंटर अ वैल्यू। तो इकलौती यही चीज है जो मैंडेटरी, बाकी सब नॉन मैंडेटरी। तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से सारी फील्ड उठा सकते हैं। अब देखो मैं कैसे उठाते जाता हूँ एक एक। ठीक है। एसीसी डॉट नेम इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुधीर कुमार। ठीक है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट वेदर वी हैव एनी रिकॉर्ड कॉल्ड एज सुधीर कुमार नाम से कोई रिकॉर्ड है क्या हमारे पास में। ऑल अकाउंट्स गो, नहीं है हमारे पास, तो ओके 1 आउट ऑफ 50 कर देता हूँ सुधीर के नाम से। लेट्स गो टू एस, सैंपल सैंपल सैंपल। सुधीर के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है अपने पास बाय द वे। ठीक है। चलो, तो ये क्लियर कट नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो एस के सारे रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, सुधीर के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सुधीर कुमार, एसीसी डॉट नेम सुधीर कुमार, और कुछ जैसे कि एसीसी डॉट रेटिंग, ठीक है, इक्वल्स टू, रेटिंग इक्वल्स टू हो सकती है हॉट वार्म कोल्ड, है ना। रेटिंग इज अ पिक लिस्ट वैल्यू। आपको थोड़ा बहुत
फील्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, हो जाता है वो। आप नहीं तो आप यहाँ से कॉपी करके ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से भी ला सकते हो। मैं डायरेक्टली उठा रहा हूँ, जैसे फैक्ट्स पता है मेरे को, इंडस्ट्री पता है, ओनरशिप, फोन, कुछ चीजें, रेटिंग ये रहा, है ना, तो आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। बट अब जैसे पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है, तो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। एसीसी डॉट इंडस्ट्री इक्वल्स टू, तो ये आनी चाहिए जो पिक लिस्ट है उसी में से एक वैल्यू चाहिए। आप अपने मन की वैल्यू नहीं दे सकते। एग्जाम्पल, अगर आप इंडस्ट्री एंटर कर रहे हो तो इंडस्ट्री क्या है, एक पिक लिस्ट है। पिक लिस्ट में जो वैल्यूज हैं आप उसी में से कोई एक वैल्यू ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई नई वैल्यू देने की कोशिश करोगे तो आपको एरर आ जाएगा। तो आई एम गिविंग दिस एज द बैंकिंग, बिकॉज बैंकिंग एक वैल्यू है यहाँ पे, आई नो दिस अ वैल्यू बैंकिंग, ये रहा बैंकिंग। बायोटेक दे सकता हूँ, केमिकल्स दे सकता हूँ, जिसकी स्पेलिंग याद है ना दे देना वो, ठीक है। एसीसी डॉट, द नेक्स्ट इज जैसे कि एनुअल रेवेन्यू, एनुअल REVENUE, एनुअल रेवेन्यू इक्वल्स टू, एनुअल रेवेन्यू ये नंबर है। एनुअल रेवेन्यू का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। और सॉरी, एनुअल रेवेन्यू डेटा टाइप जो है वो आपका डेसिमल है, बिकॉज वो करेंसी है। तो इसके लिए कोई भी जैसे कि 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ एनुअल रेवेन्यू। एंड देन एसीसी डॉट, और कोई फील्ड जैसे कि ओनरशिप, ओनरशिप इक्वल्स टू, ओनरशिप इक्वल्स टू, उसमें भी फिर आपका ये भी जो है ये एक पिक लिस्ट वैल्यू है। ओनरशिप इक्वल्स टू पब्लिक, ठीक है, ओनरशिप इक्वल्स टू पब्लिक। देन एसीसी डॉट, मान के चलिए टाइप, टाइप नाम की भी एक है, टाइप इक्वल्स टू, टाइप में आपका है अलग अलग, यहाँ पे भी ये भी एक पिक लिस्ट है। टाइप देखो आप, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, डायरेक्ट, अदर, है ना, तो उसमें से आप जो चाहे वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ प्रोस्पेक्ट, एंड देन एसीसी डॉट, एसीसी डॉट नेक्स्ट टाइप के बाद में फॉर एग्जांपल वेबसाइट ले सकता हूँ मैं, वेबसाइट इस एक फील्ड होती है वहाँ पे, ठीक है। वेबसाइट स्ट्रिंग होती है, तो एवरी स्ट्रिंग मस्ट ऑलवेज बिगिन विद इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये तो हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल www डॉट टेस्ट सैम्पल क्रिएट डॉट कॉम, ठीक है। एंड देन वेबसाइट के बाद में और कुछ वैल्यू जैसे कि फोन, एसीसी डॉट फोन इक्वल्स टू, फोन एक स्ट्रिंग होता है, फोन स्ट्रिंग होता है, इसलिए आप स्ट्रिंग है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा, तो 99 33 44 66 77 जो भी है, ठीक है। फोन के बाद में मैं फैक्स दे सकता हूँ, तो एसीसी डॉट फैक्स इक्वल्स टू, एसीसी डॉट फैक्स, फैक्स भी स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दीजिए। तो फैक्स की वैल्यू मान के चलिए कि 8899 ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और कोई वेबसी जैसे कि एक्टिव स्टेटस दे सकता हूँ, तो एसीसी डॉट, एक्टिव स्टेटस के बारे में एक चीज बता दूं, एक्टिव स्टेटस आप देखो, एक्टिव स्टेटस ये जो है ये कस्टम फील्ड है, तो इसके लिए आपको ये वैल्यू कॉपी करना पड़ेगा, एक्टिव अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसकी जो वैल्यू रहती है, एक्टिव स्टेटस की वैल्यू अगर देखना है तो एक्टिव स्टेटस में नो और यस दो वैल्यू रहती है, तो इसमें से कोई एक वैल्यू देना है आपको। पिकलिस्ट है, स्ट्रिंग है, इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यस, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यस। ऐसा ही एक फील्ड और है यहाँ पे, वो है कस्टमर प्रायोरिटी शायद, हाँ ये, तो मैं इनफैक्ट ये भी दे सकता हूँ कस्टमर प्रायोरिटी, कस्टमर प्रायोरिटी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब उसकी वैल्यू अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो मैं राइट डाउन एसीसी डॉट कस्टमर प्रायोरिटी इक्वल्स टू, तो कस्टमर प्रायोरिटी भी एक पिक लिस्ट है और इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं, हाई, लो एंड मीडियम। तो यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ हाई, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट, ठीक है, दिस मच इज सफिशिएंट, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, इसके आगे कैसे करना, अब एक बहुत ध्यान से समझो, देखिए एक चीज को समझिए आप बहुत ध्यान से, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपने न्यू कीवर्ड यूज किया यहाँ पे, ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज किया। जैसे आपने न्यू कीवर्ड यूज किया, सबसे पहले एक मेमोरी असाइन हो गई, एक मेमोरी असाइन हो गई, ठीक है। अब आप जितनी भी वैल्यूज स्टोर करते जा रहे हो वो एक एक वैल्यू इस मेमोरी में चली जाएगी, ये टेम्पररी मेमोरी है। इफ यू आस्क मी कि सर ये कौन सी मेमोरी है, तो इस मेमोरी का अपना एक नाम है। इस मेमोरी को बोला जाता है हीप मेमोरी। कौन सी मेमोरी, हीप मेमोरी। कहाँ असाइन होती है, सर्वर पे। कुछ भी मेरे लैपटॉप पे नहीं चल रहा है, ठीक है, मेरे लैपटॉप पे कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है, पूरा क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो अब ये जो मेमोरी असाइन हुई है, ये जो मेमोरी असाइन हुई है, ये बेसिकली कैसे असाइन हो रही है, तो एक एक जैसे जैसे आपने ये, जब जैसे आपने न्यू कीवर्ड दिया मेमोरी असाइन हो गई। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलोंग विथ न्यू कीवर्ड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलोंग विथ न्यू कीवर्ड, ये मेमोरी असाइन कर देता है। किसके लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए।
ठीक है, ये जो मेमोरी असाइन हुई है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट के लिए हुई है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है ACC, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ACC, तो ACC के लिए एक मेमोरी असाइन हुई है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप एक एक वैल्यू स्टोर करोगे, जैसे आपने नेम की वैल्यू दिया, तो नेम के लिए मान के चलिए उसको 8 बाइट लग रहा है, तो वो 8 बाइट रिजर्व कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, acc.name इक्वल टू सुधीर कुमार, तो ये सुधीर कुमार जो है वो इस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने बोला कि भाई रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, तो एक और मेमोरी अलॉट, जो मेमोरी अलॉट हुई है उसी के अंदर में रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, तो यहाँ पे आ गया रेटिंग इक्वल्स टू हॉट। फिर उसके बाद में आपने बोला इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग, तो एक और मेमोरी जो है, मेमोरी का उसी उसी मेमोरी के अंदर में जो अलॉटेड मेमोरी, उसी के अंदर एक हिस्सा और रिजर्व हुआ, और वहां पे ये वैल्यू लिख के दे दी गई, क्या है कि भाई इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग, इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद एनुअल रेवेन्यू, प्रोस्पेक्ट, तो इस तरह से ये पूरी मेमोरी जो है, ये पूरी मेमोरी में डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, आखिरी वैल्यू कस्टमर प्रायोरिटी हाई के साथ ये पूरा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा कहाँ पे, यहाँ पे, ये कहाँ पर है, हीप मेमोरी में। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि राइट एन अपेक्स प्रोग्राम, मैंने क्या बोला, अपेक्स प्रोग्राम करो, आप इंसर्ट करना ये सारा अकाउंट के अंदर, अकाउंट के अंदर इंसर्ट करने का मतलब होता है ये डेटाबेस पे इंसर्ट करना है। ठीक है, एक जगह डेटाबेस है हमारा, database.com, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये जो है ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे ये चीजें जानी चाहिए, ये है हमारा डेटाबेस, ये है डेटाबेस.com, यहाँ पर है आपका अकाउंट टेबल। ठीक है, यहाँ पर है आपका अकाउंट टेबल, तो व्हाट आई एम आस्किंग यू कि ये जो वैल्यूज आपने यहाँ तैयार करी है, इसको यहाँ पे स्टोर करना है, ये डेटाबेस टेबल के अंदर। ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको आज एक डीएमएल स्टेटमेंट समझाने वाला हूँ, इंसर्ट नाम की एक डीएमएल स्टेटमेंट। आगे चल के हम डीएमएल प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। तो उस वक्त जब पढ़ाऊंगा तब बाकी चीजें भी पढ़ाऊंगा, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट। अभी एक डीएमएल स्टेटमेंट आप सभी को समझना पड़ेगा, तभी मैं ये ऑपरेशन समझा पाऊंगा। तो अभी क्या हुआ है, ये जो कोड आपने तैयार किया ना, ये वाला कोड, स्टेप बाय स्टेप समझो, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, जिस मोमेंट पे आपने ये लिखा, यानी आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, जिस मोमेंट पे अकाउंट का ऑब्जेक्ट ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ बेसिकली। ठीक है, ये हुआ कि एक मेमोरी रिजर्व हो गई, जितने भी वेरिएबल्स है उसको कैलकुलेट करके एक मेमोरी रिजर्व हो गई, बट वो ब्लैंक है अभी मेमोरी, उसमें उस मेमोरी में क्या है, सब जगह नल 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 नल, हर जगह नल है। अब जैसे जैसे आप एक एक वेरिएबल पकड़ पकड़ के उसकी वैल्यू देते जा रहे हो, रेटिंग की वैल्यू हॉट, इंडस्ट्री की वैल्यू बैंकिंग, ये एक एक वैल्यू यहां ट्रांसफर होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये जो हीप असाइन हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट मेमोरी असाइन हुई है, ऑब्जेक्ट मेमोरीज हीप मेमोरी, उसमें ये वैल्यूज ट्रांसफर हुई है, ये डेटाबेस पे नहीं है, ये अभी भी डेटाबेस पे नहीं है, अभी भी डेटाबेस पे नहीं है। अकाउंट अगर टेबल है, अकाउंट अगर एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ना कि भाई जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक डेटाबेस टेबल भी तो क्रिएट होता है, तो अकाउंट में एक नाम का एक टेबल भी तो है, वहां पे जाके ये स्टोर होना चाहिए, वहां जाके ये स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, इसको यहां से लेके यहां तक लाना है, तो उसके लिए होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल स्टेटमेंट। डीएमएल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी इस मोमेंट पे आपको एक ही चीज, एक ही स्टेटमेंट पढ़नी है, और वो स्टेट का नाम है इंसर्ट। इंसर्ट, किसको इंसर्ट करो, किसको इंसर्ट करो, ACC को। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक डीएमएल स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब ये टेम्पररी मेमोरी से, सीधा सीधा बताता हूँ, ये टेम्पररी मेमोरी से उठाकर एक्चुअल डेटाबेस पे डालने के लिए मेरे को डीएमएल फायर करना पड़ेगा। क्या फायर करना पड़ेगा, डीएमएल। ठीक है, तो वो डीएमएल क्या, कौन सी डीएमएल, इंसर्ट, इंसर्ट नाम की डीएमएल, इंसर्ट नाम की डीएमएल। तो इंसर्ट ऐसा एक एक को नहीं उठाएगा, ये पूरा एक सेट है, ये पूरा एक सेट है, जिसका नाम है ACC, जिसका नाम है ACC। जब मैं बोलूंगा ना इंसर्ट ACC, तो ACC नाम की मेमोरी, जिसमें ये सारी वैल्यूज हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं ACC में, आपका नेम है, ये कहाँ गया, हाँ, तो जब ACC मैं करूंगा, इंसर्ट ACC करूंगा, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी एक ही बार में इंसर्ट हो जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा है, एक चीज को समझो, आप जाते हो कोई मॉल में, आप जैसे कि ये बिग बाजार डी मार्ट में चले गए, आपने जब आप एंटर हो रहे थे वहां पे, तो आपने अपने साथ एक ट्रॉली पकड़ ली, क्योंकि आपको बहुत सारा सामान खरीदना था।
अब आपने एक बिस्किट का पैकेट उठाया, ट्रॉली में डाला, एक जूस का पैकेट उठाया, ट्रॉली में डाला, ठीक है। एक एक वैल्यू जो है, एक एक वैल्यू आप ट्रॉली में डालते जा रहे हो। ये है वो ट्रॉली आपकी, इसमें आप एक एक वैल्यू डालते जा रहे हो। आपने डाला बैंकिंग, उसके बाद डाला आपने पब्लिक, ठीक है। ये सारा कहाँ जमा किया आपने? एक एक ट्रॉली में। और बाद में पूरी ट्रॉली लेके पहुंच गए आप कि अब उसको बिलिंग पे दे देते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, आप एक बिस्किट पैकेट लेके जाते हो, बिल करवाते हो, फिर वापस आते हो, फिर जूस लेके जाते हो, बिल करवाते हो, वापस आते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। होता क्या है कि आप पूरा सबको एक कंबाइन एक पैकेज बनाते हो, पूरा मिला के एक ग्रुप बनाते हो, और वो पूरा ग्रुप लेके काउंटर पे रखते हो, फिर उसके हिसाब से आपको बिल जनरेट होता है। बस वही सिंपल सादा एग्जाम्पल। हम ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट करते हैं, मेमोरी अलॉट हो जाती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मेमोरी अलॉट होती है। मेमोरी क्या रहती है? ब्लैंक। अब आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को पकड़ पकड़ के, जैसे acc.name, acc.rating है ना, ऑब्जेक्ट को पकड़ पकड़ के जब आप ये मेंबर्स के नाम देते हो और उसकी वैल्यू देते जाते हो, तो वो एक एक वैल्यू जो है, वो एक एक वैल्यू जो है, वो जा जाके वहां मेमोरी पे स्टोर होता चला जाता है। लेकिन अभी भी वो टेम्पररी मेमोरी में ही है। वो एक्चुअली अकाउंट ऑब्जेक्ट में नहीं आया, वो डेटाबेस डॉट कॉम पे नहीं आया अभी तक। वो कब आएगा? जब आप उसको लेके जाओगे। यहाँ एसीसी जो ऑब्जेक्ट है, टेम्पररी मेमोरी का एक नाम है एसीसी। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट का नाम एसीसी रखा है। तो वो एसीसी को अपने को इंसर्ट करना है, उसके लिए डीएमएल फायर करना पड़ता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और वो कौन सा है, कौन सी स्टेटमेंट है? इंसर्ट। और भी स्टेटमेंट पढ़ानी, लेकिन अभी टाइम आने का है। तो अब सुनो, ध्यान से सुनो। ये जितनी भी वैल्यूज मैंने बनाई है, ये सारी फिलहाल जो है वो टेम्पररी स्टोरेज पे, ये सारी फिलहाल जो है वो टेम्पररी स्टोरेज पे। इसको यहां से लेके जाना है, ठीक है। इसको यहां से लेके जाना है, मुझे इसको मेमोरी पे स्टोर करने का है। मुझे इसे अकाउंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है, ठीक है। ये अकाउंट ऑब्जेक्ट पे स्टोर करना है, इसीलिए इसीलिए मैं डीएमएल फायर करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या फायर करूंगा? डीएमएल फायर करूंगा। ये मैं डायग्राम दे दे रहा हूं आप लोग को इधर, ठीक है। तो इसके लिए मैं डीएमएल फायर करूंगा। तो एक अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो, इसके बाद में डीएमएल स्टेटमेंट आने वाली। और ये लास्ट टाइम में जब मैं बता रहा हूँ कि इंसर्ट काय के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हैंड रेस करके मेरे को मत पूछना इंसर्ट काय के लिए यूज होता है, उसको डायग्राम शेयर कर दिया मैंने। चलो, तो मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज जितनी मेरे को चाहिए थे, जितनी फील्ड्स के लिए जो जो वैल्यू चाहिए थी, वो सारी वैल्यूज लगा दी है। ये था मेरा स्टेप नंबर 2। अब मैं एक काम करता हूँ, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, क्या बोलूं मैं इसको? इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं देखो यहाँ पे डीएमएल फायर कर रहा हूँ। डीएमएल एक स्टेटमेंट है, इंसर्ट नाम की स्टेटमेंट। और किसको इंसर्ट करना है मेरे को? एसीसी को। वो पूरा का पूरा ट्रॉली लेके जा रहा हूँ मैं, ट्रॉली का नाम है एसीसी। वो एसीसी में मेरे सारे चिप्स के पैकेट, इसके पैकेट, उसके पैकेट है, ठीक है। अकाउंट नेम, इंडस्ट्री, फोन टाइप, सब कुछ उसके अंदर है। वो पूरा का पूरा दे दिया, इंसर्ट कर दिया ट्रॉली को, इंसर्ट कर दिया ट्रॉली को। अब जाके, अब ये इंसर्ट देने के बाद आपका रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो उसको चेक करने के लिए एक छोटी सी स्टेप बढ़ाता हूँ, ये समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, print the confirmation of insert operation। तो इंसर्ट हुआ है यानी इसके लिए, इंसर्ट हुआ है यानी इसके लिए एक कंफर्मेशन के लिए मैं एक मैसेज डिजाइन करता हूं यहाँ पे। इफ स्टेटमेंट लेता हूँ कि इफ acc.id, समझ जाएगा, डोंट वरी, पहले मेरे को लिखने दो। इफ acc.id इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। इफ acc.id इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर acc.id इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है, तो उसका मतलब system.debug system.debug account record inserted successfully with the id equals to plus acc.id। क्यों लिखा मैंने आपको समझ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी भले आपको लग रहा हो कि क्या लिख दे क्या लिख दे क्या लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझो आप, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, ये अभी समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम?
ओपन लॉग, अब देखो सुधीर कुमार का रिकॉर्ड अपन इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहां से तो चला गया है, अब यहां देखते हैं, पहले यहां देखेंगे फिर ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। डीबग स्टेटमेंट देखता हूं मैं क्या लिख के आ रहा है, अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली विद द आईडी, मतलब अकाउंट में एक ऑब्जेक्ट की एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है? सुधीर कुमार का। वहां जाता हूं मैं, आपको वहां लेके जाऊंगा आपको। देखो अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो आईडी जनरेट होती है। भाई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, जैसे आप देखो एक चीज समझो, अगर मैं अकाउंट में लेके जाऊं आपको, अकाउंट ऑब्जेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सुधीर कुमार ये आ गया रिकॉर्ड यहाँ पे, ठीक है। सुधीर को बाद में चेक करते हैं, जैसे सैंपल टेस्ट वन, ये रिकॉर्ड अगर मैं ओपन करूं, सैंपल टेस्ट वन, ये एक रिकॉर्ड है। हर रिकॉर्ड की अपनी एक आईडी होती है, ये इसकी आईडी। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो आईडी भी जनरेट हुई है। भाई रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो आईडी भी जनरेट हुई है। कोई और रिकॉर्ड देख लो आप, जैसे कि आप देखो ये जीनी पॉइंट, जीनी पॉइंट है तो उसका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो आईडी भी इंसर्ट हुई है। 001 001 डैश 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 001 का मतलब भाई रिकॉर्ड आईडी में पहले 3 डिजिट ऑब्जेक्ट आईडी होता है। अकाउंट का ऑब्जेक्ट आईडी है 001, कॉन्टैक्ट का 003, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? बराबर। अभी अभी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है? सुधीर कुमार। देखो सुधीर कुमार रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, ये है उसकी आईडी, ठीक है। सुधीर कुमार इंसर्ट हुआ, ये उसकी आईडी है। रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, ये हमने कहां से इंसर्ट किया है? प्रोग्रामिंग से, प्रोग्रामिंग से इंसर्ट किया है। क्या नाम है? अकाउंट नेम सुधीर कुमार, टाइप क्या? प्रोस्पेक्ट, इंडस्ट्री बैंकिंग, एनुअल रेवेन्यू इतना, कस्टमर प्रायोरिटी हाई, एक्टिव स्टेटस यस, ठीक है, रेटिंग हॉट, फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट। तो जितनी फील्ड्स आपने वहां यूज करी थी वो सारी फील्ड्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई, और जो नहीं करी थी वो नहीं आई, सिंपल बात। तो ये जो आखिरी में जो कोड लिखा ना मैंने, ये वाला जो कोड, ये अब समझो इसको, प्रिंट द कंफर्मेशन, क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है नहीं, तो मैंने चेक किया कि acc.id, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो आईडी जनरेट हुई होगी। जैसे acc.active ले रहे हो तो वैसे सब कुछ acc.id नॉट इक्वल्स टू नल। अगर वो नल नहीं है, अगर वो नल नहीं है, अगर आईडी नल नहीं है, अगर आईडी नल है मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, सिंपल। अगर आईडी नल नहीं है इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। मतलब मैं अगर चाहता ना तो एल्स में ये भी लिख सकता था, एल्स, एल्स में क्या लिख सकता था मैं? अगर रिकॉर्ड ये अगर ये नल होती तो इसका मतलब सिस्टम डॉट डीबग, सिस्टम डॉट डीबग रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, ये लिख सकता था एल्स में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप लिखना कि नहीं लिखना। लेकिन हाँ, अगर आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, आईडी नल नहीं है, मतलब आईडी में कुछ वैल्यू है, आईडी जनरेट हुई है, और आईडी अगर जनरेट हुई है इसका मतलब ये होता है सिस्टम डॉट डीबग अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, और उसकी जो आईडी है वो यही आईडी ac.id, दैट इज व्हाट आई हैव प्रिंटेड ओवर हियर, कि अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है और ये है उसकी आईडी। देखिए आप, ये है उसकी आईडी। यहाँ पे 18 डिजिट मिलेगा आपको, यहाँ पे 18 डिजिट मिलेगा, बिकॉज ये डेवलपर कंसोल है। और वही सुधीर कुमार का रिकॉर्ड यहाँ चेक करोगे तो आपको 15 डिजिट मिलेगा। अब ये 15 डिजिट को हटाकर अगर मैं 18 डिजिट डालता हूँ तो भी मेरे को सुधीर कुमार का ही रिकॉर्ड आने वाला है, बट यहाँ पे देखो 18 डिजिट आ गई, पहले 18 डिजिट नहीं थी ये, ठीक है। फर्क इतना ही है और कुछ नहीं। तो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग वी कुड इंसर्ट द रिकॉर्ड। प्रोग्रामिंग के जरिए से कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ये तो उसके लिए आपको ओआरएम पता होना चाहिए, आपको ये समझ में होना चाहिए, आपको ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हर ऑब्जेक्ट एक क्लास है, और जिस तरह से हम किसी क्लास को एक्सेस करते हैं वैसे ही हम इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये अकाउंट एक क्लास है, कॉन्टैक्ट एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और उस ऑब्जेक्ट नेम फील्ड नेम, ऑब्जेक्ट नेम फील्ड नेम, ऑब्जेक्ट नेम फील्ड नेम की मदद से वैल्यूज को इंसर्ट कर दो। उसके बाद ये मत भूलना, ये सिर्फ आपने काय पे डाला है, अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये आपने सिर्फ जो है ना सारे सामान को कार्ट पे डाला है, ये सामान आपका नहीं हुआ है। ये सामान आपका कब होगा? जब आप बिल पेमेंट करोगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ ट्रॉली पे डाला है अपने सामान को, तो ट्रॉली पे डालने से ये मत समझो कि सामान आपका हो गया। जब आप इंसर्ट करके एसीसी डालोगे मतलब आपने बिल पेमेंट कर दिया, अब ट्रॉली में मौजूद हर चीज आपकी हो गई, अब वो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। आप चाहो उसको चेक कर लो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ जाओ ऑब्जेक्ट पे जाओ, ऑब्जेक्ट पे जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ओआरएम। तो अब इससे रिलेटेड यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे जो मैंने किया वो भी सॉल्व करो, प्लस ये सारे प्रोग्राम करो। जैसे हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड है, तो हायरिंग मैनेजर का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, हायरिंग मैनेजर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, इसलिए बिकॉज वो कस्टम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो करो, प्लस ये करो 2, उसके बाद में कॉन्टैक्ट 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 एग्जाम्पल मोर देन इनफ है, आज से लेके कल तक 24 घंटे,
मोर देन इनफ। ठीक है, समझ में आया? करो। कल मैं स्टार्ट करता हूँ रिलेटेड रिकॉर्ड, उसके बाद बल्क रिकॉर्ड पे आऊंगा। कल रिलेटेड समझाऊंगा, फिर बल्क पे आऊंगा। फिर अब ये तो एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना सिखाया मैंने आज, एक ही रिकॉर्ड। सुधीर कुमार, सुधीर कुमार, वो तो अपन ऐसे भी कर सकते थे यार, यहाँ गए न्यू का बटन प्रेस किए तो एक रिकॉर्ड यहाँ से भी इंसर्ट होता। जब रिकॉर्ड यहाँ से इंसर्ट हो सकता है तो इतनी बड़ी इतनी लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग क्यों लिखना? ठीक है, उसका वजह है, वो वजह सीखोगे, डोंट वरी। यहाँ से एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकता है, बस एक, एक समय पे एक, एक समय पे 10 नहीं हो सकते, एक समय पे 50 नहीं हो सकते। यहां से एक समय पे 50,000 रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकते हैं, 50,000 रिकॉर्ड। ठीक है, नो, 10,000 रिकॉर्ड, सॉरी। यहां से एक समय पे 10,000 रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकते हैं। ये इसका ये बेनिफिट है। तो वो धीरे धीरे आएंगे। अभी आपने एक इंसर्ट एक करना सीखा है, उसके बाद मैं रिलेटेड रिकॉर्ड सिखाऊंगा। रिलेटेड रिकॉर्ड सिखाने के बाद फिर मैं बल्क पे लेके आऊंगा, बल्क में कैसे इंसर्ट करना। ये बल्क रिकॉर्ड, ये वाला, ये उसके बाद का टॉपिक है। और अब मैंने कहा ना, अब यहाँ से कोर कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी। अब आपने ऑब्जेक्ट को छेड़ दिया है, अकाउंट कॉन्टैक्ट केसेस को अब आपने छेड़ दिया है। कहाँ से? डेवलपमेंट से। तो अब यहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलो। तो ये कोड करो, प्रैक्टिस करो, और अपन फिर कल इसके आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर है? यहाँ से रिलेटेड रिकॉर्ड से।